Hello everyone, welcome back to this channel. So today we will study about GK Unit 2nd, which is Exploring India. Okay, here see some chapters. Largest in India, chapter number 7. Chapter number 8, Indian Epithest. Okay, number 9, India's Pride. Number 10, Indian Fairs. Okay, so in this session we will discuss first chapter number 7, largest in India. Let's test your geography knowledge. Fill in the blanks to find out the following. Here you have to fill in the blanks with the geographical areas. Okay, so here are some questions. First one is the largest desert in India. Dash. The name is Thar Desert. Okay, Thar Desert is the largest desert in India. Number second one is Dash is the largest planetarium in India. Birla Planetarium is the largest planetarium in India. इंडिया का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है? बिरला. और सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? थार. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट. थर्ड वन इज which dash is the largest museum in India. So the name is National Museum. Okay, now number 4, जामा मस्जिद is the largest mosque in India. यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी है? जामा मस्जिद. Now number 5th one is कैलाश टेम्पल is the largest cave temple in India. इंडिया की जो सबसे बड़ी केव टेम्पल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कैलाश टेम्पल को. ओके, नाउ द नंबर 6 इज सेंट कैथेड्रल इज द लार्जेस्ट चर्च इन इंडिया. सेंट कैथेड्रल एक ऐसा चर्च है इंडिया का जिसे सबसे बड़ा चर्च कहा जाता है. ठीक है, वो इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है. सो दैट्स व्हाई द नेम इज सेंट कैथेड्रल. मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया. मुंबई में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है. ओके, एंड राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. और सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का कौन सा है? राजस्थान. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट, नंबर 8. हियर इंडियन एपिथेस्ट. Indian epithest. An epithest is a term used to describe the most important quality of something. एपिथेस्ट हम लोग कहते किसे हैं? जिसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, किसी चीज़ की, तो उसे डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिथेट. ओके, नाउ सी, चूज द करेक्ट वन ऑप्शन इन ईच केस. हियर आर सम साइड ऑफ द पेज, एज यू कैन सी इन द ब्रैकेट्स, हियर आर सम options and you have to tick and then fill it in this blanks, as you can see here. Okay, now first one is Blue Mountains. Blue Mountains, it means Nilgiri Hills. Okay, Kolkata is the city of palaces. Third one is Garden City, which is known as Bengaluru. Now Land of the 5 Rivers, Punjab. Pink City, Jaipur. Queen of Arabian Sea, Kochi. नेक्स्ट सौरो ऑफ बंगाल. अच्छा, ये आपके लास्ट चैप्टर में भी था ना, दामोदर रिवर. ओके, नाउ स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, केरला में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ होता है. सो दैट्स वाई वहाँ पर ही स्पाइस गार्डन होता है. ओके, सो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज इन केरला. नाउ सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, अमृतसर. सन सिटी, जोधपुर. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, India's Pride. Here are some another fill in the blanks which you have to fill it. Okay, now write the answers in the following blanks. The Cherrapunji in Meghalaya receives highest rainfall in the world. सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? चेरापूंजी में, जो कहाँ पर है? मेघालय में. ओके, now the second one, the Howrah Bridge of Kolkata is the biggest or the busiest bridge of the world. ये कोलकाता का सबसे बड़ा भी ब्रिज है और दूसरा सबसे बिजीएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा चलने वाला. ठीक है, यानी यहाँ पर कभी भी गाड़ियाँ आना जाना बंद नहीं होती हैं. So that's why called the busiest bridge.
of the world. The name is Howrah Bridge. Now the next one is number 3rd. Dash Indian Railways has the largest number of the employees. इंडियन रेलवे ही एक ऐसा रेलवे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉयज़ हैं. ओके. नाउ नंबर 4, द 4,483 feet long dash platform is by far the longest of the world. सबसे ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है इन द वर्ल्ड में? तो वो है गोरखपुर में. Here you have to mention in number 4 गोरखपुर. ओके. सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है. कितना लंबा? 4,483 feet. Now number 5, India holds the largest general election in the world, employing as many as 3 million people as election staff. Now number 6, Tamil is the oldest language of the world, which is still in use. सबसे पुरानी लैंग्वेज वर्ल्ड की कौन सी है? तमिल लैंग्वेज, जो अभी भी यूज़ हो रही है. ओके. सो ये सबसे फर्स्ट और ओल्डेस्ट लैंग्वेज है. नंबर 7, द डैश क्रिकेट ग्राउंड इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. उसे बोला जाता है चाइल्ड. ओके. द चाइल्ड क्रिकेट ग्राउंड. कौन सा ग्राउंड है? चाइल्ड क्रिकेट ग्राउंड इन हिमाचल प्रदेश, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में. इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ओके. नाउ नंबर 8, द गेम स्नेक्स एंड लैडर्स वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया. कौन सा गेम इंडिया में इन्वेंट किया गया था? स्नेक्स एंड लैडर्स. नंबर 9, डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. इस दुनिया में जो सेकेंड स्पीकिंग लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है उसका नाम क्या है? इंडिया. नाउ नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, इंडियन फेयर्स. इंडियन फेयर्स. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. इंडिया को फेयर्स एंड फेस्टिवल का ही लैंड कहा जाता है. सो रीड द क्लूज बिलो एंड यूज अ हिंट बॉक्स टू नेम दीज फेयर्स. हियर इट इज. फर्स्ट, it is a very big fair celebrated every 12th year at 4 holy places of Prayagraj, means Allahabad, Haridwar, Ujjain and Nasik. It is held by rotation on the banks of the sacred rivers, okay, like Godavari, Shipra, Yamuna and Ganga. Okay. What is the name of this fair? पहले मैं आपको इस मीनिंग बता दे रही हूँ. ये बहुत बड़ा मेला होता है जिसे हम लोग हमेशा हर 12 साल में सेलिब्रेट करते हैं. ओके. एट 4 होली प्लेसेस. सिर्फ 4 ही ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ पर इसे मनाया जाता है. फर्स्ट वन इज़ प्रयागराज, इज ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद. देन हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. ओके. और यहाँ पर रिवर बैंक्स का रोटेशन होता है, जस्ट लाइक द रिवर नेम गोदावरी, शिप्रा, यमुना एंड गंगा. द नेम ऑफ दिस फेयर इज कुंभ मेला. Okay. Now number 2, the fair is known by the name of the city in which it is held. It is one of the largest camel fairs and it is held in October-November every year. Camel race, horse race, turban competition and tug of war are some of the major attraction of this fair. ये कौन सा मेला है? Okay, you have to give the name. Firstly, just understand, this fair is known by the name of the city in which it is held. इस मेले को उसी जगह के नाम से ही जाना जाता है. ठीक है. ये कह सकते हैं कि इस मेले को उस जगह का ही नाम दिया गया है. एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल फेयर्स. और यहाँ पर बहुत बड़ी कैमल फेयर होती है. दैट शोज इट इज़ हेल्ड इन राजस्थान. ओके. बट ये राजस्थान की एक जगह का है. ठीक है. सिटी का है, नॉट अ स्टेट as mentioned here, the city. Okay. And it is held in October-November every year. इसे अक्टूबर से नवंबर में ही मनाया जाता है. एंड यहाँ पर क्या क्या होता है? कैमल रेस, हॉर्स रेस, टर्बन कॉम्पिटिशन एंड टग ऑफ वॉर. ओके. आर सम ऑफ द मेजर अट्रैक्शन. यहाँ का ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है. यहाँ पे कैमल रेस भी होती है, हॉर्स रेस भी होती है एंड टर्बन कॉम्पिटिशन भी होता है. सो द नेम ऑफ दिस फेयर इज पुष्कर मेला. ये पुष्कर मेला है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज 3rd. इट इज़ अ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड ईच ईयर इन हरियाणा. इसे हरियाणा में हर साल मनाया जाता है.
ठीक है, जिसे हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट बोला जाता है, यानी हाथों से बने सामान जो होते हैं। स्किल्ड आर्टिस्ट, पेंटर्स, वीवर्स, स्कल्पचर्स एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम all over India take part in this fair and it takes places in the month of February. इसे कौन से मंथ में मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरीके के स्किल्स वाले पर्सनस होते हैं, जैसे आर्टिस्ट, पेंटर्स, वेवर्स, स्कल्पचर यानी जो मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, एंड क्राफ्ट्समैन ऑल्सो। सो what is the name of this fair? It is सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला, ओके। नंबर 4, इट इज़ द लार्जेस्ट फेयर इन द वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का बहुत ही लार्जेस्ट फेयर है, बहुत बड़ा मेला। एंड इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ द मकर संक्रांति। इसे मकर संक्रांति में ही मनाया जाता है हर साल। थाउजेंड ऑफ द पिलग्रिम्स इट मीन्स जो बाहर से आते हैं सैलानी, ठीक है, टेक अ डिप एट द प्लेस। टूरिस्ट भी हम बोल सकते हैं पिलग्रिम्स को एक तरह से। नाउ take a dip at the place where river Ganga enters into the Bay of Bengal. Thousands of pilgrims take a dip. Thousands of pilgrims यानी जो श्रद्धालु होते हैं हज़ारों की संख्या में, वो सब क्या करते हैं? गंगा रिवर में जाते हैं। बे ऑफ बंगाल में जो गंगा रिवर है वहाँ पर डिप इट मीन्स डुबकी लगाना, ठीक है। What is the name of this fair? The name is Ganga Sagar Mela. Okay, what is the name? Ganga Sagar Mela. Now this chapter is also completed, so unit 2 is complete. And what you have to do, you have to learn each and everything, okay, related to the largest in India, Indian epithets, or the India's pride, or Indian fairs. Okay, thank you for watching this.